گانجا، فیم، چرس، شراب، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو تو ملنا تھوڑی دیر کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن آسانی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے ہر ذات والا دوسرے ذات والے کو فوراً پہچان جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو یہ نیا نشہ نکلا ہے اس نشے کے اچھے اچھے بچے شکار ہو رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ پتہ یہ چلا وہ کہیں نہ کہیں کسی ایسے کی صحبت میں رہ رہا ہے جس کی صحبت کی وجہ سے وہ بچہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ جب اس نشے کا وہ عادی وہ بچہ ہو جاتا ہے، نشہ اس کے رگ رگ میں اگر پڑ جاتی ہے، آپ لاکھ کوشش کریں چھڑانے کی ممکن نہیں ہے۔ محبت کی تمنا ہے تو پھر وعدہ یوسف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وعدہ یوسف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ تو اگر سچا عشق کرتا ہے مجھ سے اے بنی آدم، تو اگر سچا عشق کرتا ہے مجھ سے اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر۔ میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، تو اپنے آپ میں میری جستجو پیدا کر۔ تیری خاطر اگر میں تیری دنیا نہ بدل دوں تو کہنا، تیری خاطر اگر میں تیری دنیا نہ بدل دوں تو کہنا، تو پہلے اپنے آپ میں انداز وفا پیدا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ آج کے دور میں آلود ہو چکا ہے، یا یوں کہہ لیجئے سمجھنے والی زبان میں کہ ہمارا معاشرہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اب یہ معاشرہ خراب ہوا تو اس خرابی کے ہمیں کارن ڈھونڈنے پڑیں گے۔ جس طریقے سے اگر کسی انسان کو بیماری ہو جائے اور بیمار پڑ جائے، پھوڑا پھنسی ہو جائے، فیور آ جائے، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، کان میں درد ہو، دانت میں درد ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ہم پھر رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور اس کے پاس جانے کے بعد ہم اسے پوچھتے ہیں کہ مجھے ہوا کیا، آپ میری جانچ کریں، اور جانچ کرنے کے بعد مجھے اس کی اطلاع دیں کہ آخر میرے پیٹ میں اگر درد ہے تو کیوں ہوا، اگر دانت میں درد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اگر میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر پھر اس وجہ کو بتاتا ہے، انسان کا چیک اپ کرتا ہے اور اس بیماری کو ڈھونڈتا ہے اور اس کی وجہ بتاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا اس وجہ سے کہ آپ کے پیٹ میں گیس ہو گیا، یا آپ کے دانت میں درد ہوا اس وجہ سے کیونکہ آپ دانت ہمیشہ صاف نہ کرتے، کیڑا لگ گیا جس کی وجہ سے آپ کے دانت میں درد ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ جو بیماریاں وہ ریسرچ کرتا ہے، چیک کرتا ہے اپنے مشینوں کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پیشنٹ کو اطلاع دیتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو یہ بیماری لگی۔ معاشرے میں کون رہتے ہیں آج کے دور میں؟ جو پرانے زمانے میں رہتے تھے آج کے دور میں بھی وہی رہ رہے۔ پہلے بھی آدمی رہا کرتے تھے، آج بھی آدمی رہا کر رہے ہیں۔ پہلے بھی آدمیوں کے ساتھ اور دوسرے لوگ رہا کرتے تھے، جانور بھی رہا کرتے تھے، آج بھی ہے، فرق تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بگاڑ جو پیدا ہو چکا ہے، اس بگاڑ کے ہمیں کارن دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش و تمنا رہتی ہے کہ انسان بالکل اطمینان رہے، کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ ہو، بالکل ٹینشن فری ہو۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اگر تمہیں دلوں کو اطمینان اگر چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ لیکن کیا ہر آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ بیماری کا علاج اللہ نے بتایا، دلوں کے اندر اگر بیماری ہے تو اس کا علاج یہ ہے تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کے پاس اپنی شکایتیں اپنی پریشانیوں کو پیش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا معالج تمہارا علاج کرتا رہے گا اور تمہیں اطمینان ملتا رہے گا۔ لوگ کر رہے نہیں کر رہے۔ یوں سمجھ لیجئے آج فیصدی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مشکل سے 2% لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، اور 2% لوگ آتے ہیں اور بیماریاں ہمارے پاس 98% ہے۔ تو 2% لوگ مسجد میں آ گئے، اس کی بیماری دور ہو گئی، 98% لوگ گھر میں موجود ہیں، تو پھر بیماری کا وہ شکار ہوں گے۔ یا یوں دیکھا جائے کہ آخر وہ بیماری آئی تو آئی کہاں سے، اس کی جڑ کیا ہے؟ ہر گھر میں بیماری ہے، آدمی پریشان ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا۔ سب سے بڑی پریشانی، اس کے پاس پیسے بھی ہے، زمین بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، عہدیدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ بچے میری بات نہیں مان رہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، سب کچھ ہے، سارے لوگ مان سمان دیتے ہیں، لیکن گھر جانے کے بعد اپنے گھر میں اس کا وقار نہیں ہے۔ اب اس وقار کو کھونے کا ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، آخر مجھے میرے گھر میں وقار کیوں نہیں؟ یہ بیماری لگی تو کہاں سے لگی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے کہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور فرمایا کہ اگر تم نہیں بچاؤ گے تو بیماریاں ایسی لگیں گی کہ تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے ایمان کا ٹھکانہ نہ رہے گا۔ بیماریاں کیا کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور تیر کے پھال، اسی طریقے سے انصاب، یہ سارے کے سارے رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطانوں کے کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچنا، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے۔ اب یہ بیماریاں بتائی اور اس بیماری کے بعد بتایا کہ اس سے دور رہنا، اگر دور رہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی، قرآن میں نازل کر دیا، ہمارے تک بات پہنچ گئی، لوگ رک نہیں رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ جب قرآن نے صاف صاف اعلان کیا، بات ہم تک پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی آدمی اس کا شکار ہے، تو آخر شکار ہوا تو کیسے شکار ہوا؟ چوک ہم سے کہاں ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا بچہ اس کا شکار ہو گیا؟ ہمارا بچہ جوا کھیلتا ہے، ہمارا بچہ شراب پیتا ہے، ہمارا بچہ بری لت میں ہے، ہمارا بچہ بری صحبت میں رہتا ہے، آخر چوک ہم سے کہاں ہوئی؟ چوک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے بچوں پر نگہبانی کرے، ہر کوئی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور ایسی تربیت کرے کہ وہ خود اس پر قائم رہے۔ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس تربیت پر وہ انسان خود قائم رہے۔ مثال کے طور پر لقمان علیہ السلام نے یا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔
बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा, तरबियत कर रहा है, क्या है मेरे बेटे नमाज को कायम करो। तो अब बेटे ने बाप से कहा नमाज को कायम करो, तो क्या उसका बाप नमाजी नहीं है? बाप नमाजी है, बेटे को वसीयत कर रहा, तरबियत कर रहा, समझा रहा है, या बुनैया, आए मेरे बेटे, अकीमिस सलाह, नमाज कायम करो। मतलब यह है कि वो भी नमाजी। वामुर बिल मारूफ, और कह रहा है कि तुम दूसरों को अच्छाई का हुक्म दो। इसका मतलब यह है कि बाप खुद अच्छाई पर कायम है, बाप बच्चे को वसीयत कर रहा है, तरबियत कर रहा है, समझा रहा है कि वामुर बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म करो, वस्बिर अला मा असाबका, और फरमाया कि जो कुछ तुम्हें अगर कोई तकलीफ पहुंचे, कोई दिक्कत पहुंचे, कोई परेशानी पहुंचे, उस पर सब्र किया करो। यानी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ये तरबियत दे रहे हैं, तो जो तरबियत दे रहे हैं उनको देखना होगा कि वो कैसे हैं, क्या वो इस चीज पर कायम है या नहीं है। अब बिल्कुल कायम है, आप खुद नमाज पढ़ने वाले, आप खुद अच्छे कामों का हुक्म करने वाले, आप अच्छाई के पाबंद रहने वाले, और आप अपने बच्चों को इसकी तरबियत दे रहे हैं, बच्चा इसको कैच करता है। आप एक बात का गौर करें, झारखंड का बच्चा, हम झारखंड में रहते हैं, जिला हजारीबाग में, हमारे झारखंड के, हमारे हजारीबाग के बच्चे वही जबान सीखता है जो जबान हम बोलते हैं। हम अगर अपनी खोरटा जबान अगर बोलते हैं बच्चों के सामने, या बच्चों से अगर उसी अंदाज में बात करते हैं, मेरा बच्चा उसी जबान को कैच करता है। हम जिस एतबार से जीते हैं घर के अंदर, जिस शान से हम जीते हैं, जिस एतबार से पहनावा पहनते हैं, हम अपने बच्चों को वैसे ही पहनाते हैं, गोया के हमारे साथ घुल मिल रहा है और हमारी सारी चीजों को वो कैच कर रहा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमने बच्चों को गाली के अंदाज में बात की, गाली गलौज से बात की, तो बच्चा दुआ कभी नहीं सीखेगा, वो गाली ही सीखेगा। हमारी जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो शीशे की तरह वो बच्चा है, वो उसको कैच करता है, हमारी नक्ल हरकत को कैच करता है। आप देखते होंगे कि जिसके माँ बाप या जिसकी माँ या जिसके घर में डांस करने वाले बच्चे हों, अगर वो घर के अंदर डांस औरतें कर रही हो तो बच्चा भी डांस करता है, वो कैच करता है, वो समझ रहा है कि हमारा रास्ता इसी की तरफ जा रहा है, वो बच्चा इस चीज को कैच कर रहा है। तो और हर आदमी ये कहता है, हम लोग भी कहते हैं कि ये फलाने खानदान का बच्चा है, उसी खानदान में जाएगा, फलाने का खून है, फलाने की आदत पकड़ेगा। तो फलाने का खून है का मतलब क्या है? आदत वही पकड़ेगा अगर उस के माँ बाप ने जो आदतें बच्चों के दरमियान में दिखाई हैं वही आदत बच्चा कैच करेगा। जो जबान आपने सिखाई है वही जबान बच्चा सीखता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं और दूसरे लंदन चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, तो वहां का बच्चा, सऊदी का बच्चा अरबी में बात करता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, हमसे बेहतर अरबी बात करता है। मतलब उसके वो अपने माँ बाप के तरबियत को कैच किया और वो अरबी में बात करता है। मिस्र आप चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हाफिजे कुरान है और कुरान ऐसा पढ़ता है कि कैसेट उसके सामने क्या माना रखता है। क्यों? उसकी बहन पढ़ती है, उसके माँ बाप पढ़ते हैं, उसके भाई लोग कुरान को इतने अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। वो बच्चा जो छोटा सा होता है उसी को कैच करता है और उसी तरीके से कुरान पढ़ने वाला हो जाता है। आप अमेरिका जाए, वहां इंग्लिश बोलचाल है, लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, वहां के बच्चे पैदा होते ही अंग्रेजी बोलचाल उसकी हो जाती है। अलगर्ज ये है कि माहौल बच्चों को जैसा मिला घर के एतबार से बच्चा उसी को कैच करेगा। आपके घरों के अंदर अगर ये माहौल है, क्या आप किसी को गाली गलौज न देंगे? आपका बच्चा भूल कर भी गाली न देगा। उसे पता है ये गलत अल्फाज है, हमारे घर से ये अल्फाज कभी निकले नहीं, अगर मैं ये अल्फाज अपनी जबान से निकालूंगा हमें घर से हमें डांट डपट होगी और हमें मार पड़ेगी, इसलिए बच्चा उस चीज को नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ का माहौल, आपके घर का 24 घंटे का माहौल अगर वही बना रहता है
24 घंटे के घर के अंदर सारे लोग बेनमाजी पड़े होंगे, वो बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे किसी दादा के साथ आ जाते हैं, किसी के चाचा के साथ आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। एक घर में एक नमाजी है, इस बच्चे को शौक बन रहा है कि हम भी जाएं, जहां ये जा रहे हैं वहां हम भी जाएं। इसे पता नहीं है नमाज क्या होती है, नमाज में किससे बात की जाती है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है। सिर्फ ये एक्टिंग करता है, रुकू हम भी करते वो भी करता, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा, वो सीख रहा है, हमारी तरबियत में उठल रहा है। तो जिस तरीके से तरबियत घर के एतबार से मिलता है, घर में जैसी रोशनी रहेगी वो रोशनी हमारे बच्चों पर पड़ेगी और हमारा बच्चा उसी एतबार से ढलेगा। आज के जमाने के अंदर बुराइयां गिनाई नहीं जा सकती हैं। जिस तरीके से आज के दौर के अंदर जितनी रिश्तेदारियां हैं उससे कई गुना ज्यादा बुराइयां हमारे यहाँ मौजूद है, माशरे में मौजूद है, उसको गिनाया नहीं जा सकता है। आज ऐसे ऐसे नशावर चीजें मार्केट में मौजूद है और उसके लत हमारे बच्चों में लग गए, उसके लत हमारे बच्चों में मौजूद है। ऐसे ऐसे नशा है आप पकड़ नहीं सकते कि इसने नशा करके आया है, उसने क्या कांड करके आया है, आप इसको पकड़ नहीं सकते। ये किसके अंदर है? हमारे नौजवानों में। हमारे ये माशरा जो बिगड़ गया है, हमारा माशरा जो खतरनाक दहाने पर पहुंच गया है, इसकी फिक्र कौन करेगा? इसकी फिक्र कौन करेगा? इस माशरे को सुधार के लिए कौन खड़ा होगा? कोई नबी आने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और खातमुन नबिय्यीन है, इसके बाद नबी आने वाले नहीं है। वजह आपको सोचना होगा, इसकी वजह आपको सोचनी होगी कि आखिर हमारा मुआशरा इतने खतरनाक दौर में कैसे चला गया। जिस चीज से साइकिल के ट्यूब को साटा जाता है, जिसे सुलेशन कहा जाता है, सब जानते हैं। आज के बच्चों में यह आम बीमारी है, उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करना। इसका मिलना आसान है, कोई भी जाए किसी भी दुकान से ले सकता है, उसका नशा हो रहा। गांजा, अफीम, चरस, शराब, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इसको तो मिलना थोड़ी देर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन आसानी है। ये देख लीजिए, हर जात वाला दूसरे जात वाले को फौरन पहचान जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो ये नया नशा निकला है, इस नशे के अच्छे अच्छे बच्चे शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों? पता ये चला वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे की सोहबत में रह रहा है जिसकी सोहबत की वजह से वो बच्चा इसका शिकार हो रहा है। जब इस नशे का वो आदी वो बच्चा हो जाता है, नशा उसके रग रग में अगर पड़ जाती है, आप लाख कोशिश करें छुड़ाने की, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वजह यह बन जाती है, या वो बच्चा अपने माँ बाप का कातिल हो जाता है, या वो बच्चा आगे चल करके चोर बन जाता है, या वो बच्चा आगे चल करके सबसे बड़ा डाकू और डकैत बन जाता है। इसी वजह से, क्योंकि उसे पता है अच्छाई की तरफ जाओगे ये सहूलतें नहीं मिलेगी, बुराई की तरफ जाओगे बुरे लोगों से मुलाकातें होंगी, और वो उसी माशरे में चला जाता है जिसका लौट कर आना मुमकिन बिल्कुल नहीं होता। बुजुर्गान मोहतरम, हम ये कहना चाहते हैं, ये कमजोरी हमारे अंदर है। क्या कमजोरी है? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कमजोरी ये है, हमने अपने बच्चों के दरमियान से इतनी दूरियां इख्तियार कर रखी। क्या दूरी इख्तियार की? घर का आदमी जब अपने घर में एंट्री मारता है, सारे बच्चों पर आपका रौब रहता है, और ऐसा रौब रहता है अगर किसी को किसी जगह पर आपने देख लिया, देखते ही फौरन आपने डांट डपट कर दिया, और उस डांट डपट की वजह से बच्चा आपसे दूरी बनाए रहता है। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि घर के अंदर जो हमारे फैमिली मेंबर के अंदर कभी आप बैठे, सब मिल करके बैठ करके कभी आपने अपने बच्चों को कुछ पूछा? आपने कभी उसकी तकलीफें सुनी? कभी अपनी बेटियों से कुछ पूछा? बड़ी हो गई आपने उसकी तकलीफें सुनी? कभी आप अपने करीब लाने की आपने उसको कोशिश की? नहीं की। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे उम्मीद है कि 90% लोग ऐसे होंगे जो कभी अपने घरों में मिलजुल कर बैठकर
एक साथ बैठते नहीं होंगे, एक साथ खाना खाते नहीं होंगे, एक दूसरे के दिल को आवाज देते नहीं होंगे। ये मुझे यकीन है और मेरा यकीन, मुझे उम्मीद है कि गलत नहीं होगा। हम पेरेंट्स लोग अपने बच्चों से इतने दूर हैं, सौतन का रिश्ता है। माँ बाप और बच्चों में सौतन का रिश्ता है। माँ बाप एक तरफ, बच्चे एक तरफ। बिल्कुल घर के अंदर अगर माँ बाप आ जाए, बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। हमने वैसा माहौल बना रखा है। क्यों? लोगों ने आपको समझा रखा है, जितना कड़क रहेंगे बच्चे आपसे डरेंगे। बिल्कुल कड़क बन करके रहना है, बच्चों को, अपने बहुओं को गुलाम बना करके रखना है। अगर ऐसा रहोगे तुम्हारा सिक्का चलेगा, अगर आप ऐसा रहेंगे सिक्का खोटा हो जाएगा, सिक्का चलेगा नहीं, सिक्का खोटा हो जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। बहुत सारी बीमारियां हैं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर तो बात होगी ही। ये सारी चीजें थी, कुछ मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की कि हमारे दरमियान में ये गलतियां मौजूद हैं, जिसके वजह से बच्चे हमसे बहुत दूर होते जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं, दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप समझता है बच्चा हमारा दुनिया को पकड़ लिया, बड़े पैसे वाला बन जाएगा। आपका बच्चा जब तक दीनदार ना होगा, पैसे उसके पास कितना हो जाए आपके नसीब नहीं होने वाले, वो पैसे किसी और के नसीब हो जाएंगे। दीनदार बच्चा होगा तभी आपको यहाँ और वहां दोनों जगह पर कामयाबी मिलेगी। बहरहाल मुआशरा बिगड़ रहा है और इस मुआशरे को सुधारने की जिम्मेदारी हर घर में मौजूद है। अगर चाहे अपने मुआशरे को सुधार सकता है, अगर चाहे तो हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को सुधार सकते हैं। किस एतबार से? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। अपने बच्चों को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया अपने महबूब को कि आप लोगों को दावत दें, हिकमत के साथ दावत दें। आप मेरी तरफ लोगों को बुलाएं, हिकमत के साथ बुलाएं। आप ऐसा ना हो कि आपकी आवाज के अंदर कड़क हो, आपकी आवाज के अंदर तैश हो, ऐसा नहीं, बल्कि नरम मिजाजी, नरम लहजा और बुर्दबारी के साथ उसके दिल को समझने समझाने के एतबार से अपने बच्चों को करीब करना चाहिए। बहरहाल ये मुहिम तकरीबन 1 महीना तक के चलेगा। हमारे ईसाइयों के बच्चों ने कुछ इस एतबार से एक डब्बा सा रखा है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे दरमियान में बहुत सारे नौजवान रहते हैं जिनके दिलों के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अपने पेरेंट्स से कहना चाहते हैं या किसी और से कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। या बहुत सारे बच्चों के अंदर कुछ दिल के अंदर ख्वाहिश होती है, अगर वो गलत रास्ते पर है तो जरूर, लेकिन उसका ज़मीर गवारा देता है कि कोई आदमी ऐसा मेहरबान मुझे मिल जाए, मुझे उस रास्ते से हटा करके सीधे रास्ते पर ले आए। ऐसा भी उसके दिल के अंदर ख्याल होता है। याद रखे, जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह से फारिग होता है, नादिमो शर्मिंदा होता है, एहसास होता है कि हमने ये काम गलत किया, अब वो आदमी चाहता है कि कोई ऐसा मुरब्बी मुझे मिल जाए जो मुझे हाथ पकड़ करके इस गलत जगह से खींच कर मुझे दूसरे जगह पर, सही जगह पर ले जाए। हमारे नौजवानों के अंदर अगर इस तरीके का या इसके अलावा कोई भी उलझन या कोई भी सवालात आपके दिल के अंदर हो, हमने 2-3 सवालात दागे, आपके पास कई सवालात ज़हन में आते होंगे हमारे नौजवानों से। हमारे ईसाइयों के बच्चों ने एक डब्बा सा रखा है बॉक्स की सूरत में। आप अपने सवालात को उस बॉक्स के अंदर डालें। आप अपने सवालात को उसके अंदर, आप अपना नाम ना लिखें, उसके अंदर कुछ भी ना लिखें। आपके दिल के अंदर जो सवालात हो, आपकी जिंदगी से रिलेटेड, आपकी बुराइयों से रिलेटेड जो भी आपके अंदर सवालात बने या और भी कोई सवालात बने, आप उस बॉक्स के अंदर सिर्फ सवाल डाल दें, लिख करके डाल दें। अपना नाम ना लिखें, अपना पता, एड्रेस कुछ भी ना लिखें। सिर्फ आपके दिल में जो सवालात हो आप उसमें डालें, ताकि आइंदा हफ्ते उस सवालात को निकाला जाए और आपके सवालात को आपके पेरेंट्स के सामने पढ़ा जाए, ताकि हर घर के गार्जियन इस चीज को सुने और सुन करके इसको महसूस कर सके कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। हो ना हो हमारे बच्चे की ये ख्वाहिश हो, जिस ख्वाहिश का इजहार यहाँ से किया जा रहा है,
آپ اپنے نام نہ لکھیں، لیکن جو جو خیالات آپ کے دل میں ہو آپ بطور سوال کو کہ میرا سوال یہ ہے، اور اس طریقے سے کر کے آپ اس سوال کو لکھ کر انگلش میں ڈالیں، اردو میں ڈالیں، ہندی میں ڈالیں، جس اعتبار سے زبان میں ڈالیں آپ اس کے اندر ڈال دیں، انشاءاللہ آپ کو معقول جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سبوں کو معاشرے کو درست کرنے کی فکر